My screen is visible to you people? Yes, sir. Okay, great. So the objective for this course for which we are going ahead, so that is to increase your business, so increase the conversion. Actually, we would be talking for next 7 to 10 days on conversion. कैसे हम ज्यादा बिजनेस लाएं और जितने भी लोगों को हम मार्केटिंग कर रहे हैं उनमें से ज्यादा कैसे कन्वर्जन हो, ये सेल्स फनल हमें यही हेल्प करने वाला है। तो हमारा जो एंड पर्पज है वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि वी हैव टू एनहेंस द कन्वर्जन रेट। हमें अपना कन्वर्जन रेट बढ़ाना है बिजनेस में। तो वो कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ सकता है, सेल्स फनल हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू हैव 6 लेसन्स हियर। And the first lesson, which is today, we are going to discuss intro and conversion rate. आज हम conversion rate और introduction करेंगे इसके साथ। And lesson 2, lead magnet, sales funnel making, sales communication dripping system in a sales funnel that we are going to discuss. And then commercial sales funneling. And the 6th lesson would be how to maximize the conversion through sales funnels. So we are going to discuss everything around the conversion rates. We are going to discuss tools, how to create tools, how to implement, how to make a part of those tools in our marketing strategy so that our conversion rate should go high. And what to cover today, that is what is sales funnel, what are its benefits, and what are its requirements, what we have to do to create one for our business, and what are the sub tools to make it, and where would you construct this, and how to construct one for your business. So we are going to discuss now. Before going ahead, I would ask you all here, what is your knowledge about this? What exactly do you know about a sales funnel? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? यस, हुआ? चल गया? एक्टिवेट हो गया नेट आप सबका? यस, आई वुड आस्क एवरीवन हियर प्लीज, आप अपना जो ज्ञान है सेल्स फनल का मुझे बताएं कि आपके हिसाब से सेल्स फनल क्या है। What exactly the sales funnel is as per you? What do you think about this? Yes. Am I audible to you people? क्या आप लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूं? Yes. Yes, प्लीज चैट में या आप माइक पर दोनों में से कहीं भी बता सकते हैं what exactly you think, what is this sales funnel? लक्ष्मी श्रीनिवास जी ने, यस, सबसे पहले लक्ष्मी जी ने जो लिखा है, तो आई एम गोइंग टू टेल दिस टू यू पीपल. Sales funnel is the process of converting a lead to a client through a predefined process. Wonderful, बहुत बढ़िया लिखा, thank you ma'am. Yes. So, is there anybody else? आप सब मेरे ख्याल से एक कंज्यूमर को आपका वॉइस क्या प्लीज? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अलग अलग तरीके से कंज्यूमर को जो सेल्स पर्सन जोड़ते हैं. ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, बहुत बढ़िया, यू ट्राइड बेस्ट. Alka Mehtre ji, welcome to this new batch ma'am. So we are happy to have you here once again so that we can really appreciate your this interest you are putting in our courses. नो आइडिया करण जी, बहुत बढ़िया है. सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन मैं करण जी आपको करूंगा क्योंकि आपने बड़ी तसल्ली से कहा है कोई आइडिया नहीं है तो कहा, बिकॉज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, नहीं समझ में आया, नहीं पता है तो लिखो नहीं पता. मुझे भी नहीं पता होगा तो मैं भी आपको ये कह सकूंगा कि मुझे नहीं पता.
ओके, ब्रिज जी ने कहा टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स, करण जी ने कहा नो आइडिया, अलका मैत्री जी ने कहा कि एग्जैक्टली टारगेटिंग आवर कस्टमर्स, हाउ टू कन्वर्ट अ कस्टमर, डॉक्टर मिली ने कहा कमिंग टू अस टू जनरेट सेल्स, वंडरफुल, ग्रेट, सो यू ट्राइड बेस्ट, आई विल थैंक एवरीवन हियर, सक्षम ने भी Sir, कहा, I can also try, sir. यस प्लीज प्लीज प्लीज, I can also try, sir. यस आप ही रह Sir, गए थे, it's converting leads into the conversions. कन्वर्टिंग लीड्स That इनटू is, as कस्टमर्स, per me, is the sales funnel. ग्रेट, Customers or converted customers. यस, सक्षम आप किसी दूसरे अकाउंट से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सक्षम, नहीं सर, जी नहीं सर। आप अभी जस्ट ए मिनट, सक्षम आर यू इन द क्लास? यस सर, हेलो। हाँ, आप दूसरे अकाउंट से भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं अभी कंप्यूटर से हूँ, मैं इसी से बात कर रहा हूँ और कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहा मैं। अच्छा, तो कोई सर सक्षम, का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी और डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो कृपया पहले बताएं सर को। हाँ बता दें, नहीं तो कुछ लोग जो कॉम्पिटिटर हैं वो लोशंस क्रिएट करने के लिए आप ही के नाम से एंट्री करने की कोशिश करते हैं। जी नहीं सर, मैं इससे ज्वाइन नहीं कर रहा। चलिए ग्रेट, जस्ट ए मिनट, पहले फिर ये ओके, आपने बताया, बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्चुअली बिजनेस का जो फिनोमेना है दैट हैपेंस दिस वे, हम आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी को थोड़ा मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमारा गोल प्लानिंग स्ट्रेटजी होता है। आप में से कितने लोगों के पास यहाँ गोल प्लानिंग है, अपना बिजनेस गोल प्लानिंग स्ट्रेटजी है? प्लीज जिनके पास है दे कैन पुट यस, आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं, जिनके पास नहीं है वो लिखें नो, बिकॉज मैं सिर्फ इसको डिस्कस ज्यादा नहीं, इलेबोरेट नहीं करूंगा, बिकॉज वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट एक्चुअली अगर वो है तो आपको बिजनेस में ग्रेट सक्सेस मिलती है, और अगर नहीं है तो मुश्किलें ज्यादा होती हैं। अलका मैत्री जी के पास नहीं है, लक्ष्मी मैम के पास है, डॉक्टर मिली के पास है, वंडरफुल, यस, नेक्स्ट, यस, बाकी सभी प्लीज प्लीज इंटरेक्ट करें। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, नो में भी है तो नो में भी इंटरेक्ट करें। नॉट एग्जैक्टली, ब्रिज जी बहुत बढ़िया, ओके, बाकी सब सक्षम, व्हाट इज गोल प्लानिंग, नो आइडिया, अंशुका जी ने लिखा, दैट्स नाइस, ओके, करण नो जी, ठीक है, दैट्स नाइस, ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक ओके, तो गोल प्लानिंग अगर हमारे पास नहीं है, और अंशुका जी ने पूछा वो होता क्या है, मैं गोल प्लानिंग का मतलब है कि जब बिजनेस आप कर रहे हो तो क्या करने वाले हो, एक्चुअली अचीव क्या करने वाले हो, एंड टारगेट क्या है, वेयर डू यू वांट टू गो, आपको जाना कहाँ है बिजनेस में। लोग कहते हैं मुझे पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना है, लोग कहते हैं कि मुझे ये पर्पज के लिए बिजनेस करना है, तो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑफ आवरसेल्व्स। सो व्हाट इज आवर एम टू in this training business, rather this is not business for us, this is service for us, हम सेवा में हैं, and for next 10 years we have a plan, अगले 10 साल में हम अपनी जिंदगी का वो सब कुछ करना चाहते हैं in terms of work और सर्विस जो हमने करना है लाइफ में। तो by 2031 we would be
delivering our services to 10 lakhs people, 10 लाख लोगों को हमें अपनी सर्विसेज देनी है, and a part of them would be paid and for others would be free. तो free and paid दोनों का combination करके हमें 10 लाख लोगों को सर्विसेज देनी है, and the whole expense and our bread and butter all is required to be earned from this model only, and that we have identified how much money we would require to earn, वो भी हमने लिखा हुआ है। तो वो पूरा गोल प्लान हमने किया हुआ है, और उसको फिर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसको हमें इंप्लीमेंट करना है, कैसे हम उसे कमाएंगे, वो सब हमने पहले बनाया, फिर बिजनेस करना शुरू किया। समझना, हम क्या करते हैं, काम करना पहले शुरू करते हैं, हम टारगेट डिसाइड नहीं करते, मंजिल डिसाइड नहीं करते, पाथवेज डिसाइड कर लेते हैं, और फिर हमें स्ट्रगल मिलता है और हम भटकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले टारगेट मंजिल तय करनी है। वी हैव टू फिक्स द एंड टारगेट, व्हाट इज आवर एंड गोल to go in this business. Then we have to distribute all the things step by step to achieve one by one. So this happens this way. अगर आपके पास नहीं है तो वो हम एक अलग सेशन में कर सकते हैं इसको, या एक अलग कोर्स होता है वहां डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है बिजनेस में, जब आपने वो टारगेट डिसाइड कर लिया, मान लिया यू आर इन बैंगलोर एंड यू वांट टू गो टू द हैदराबाद, तो बेंगलोर से हैदराबाद जाने के लिए आपको क्या करना है, आपने टारगेट लिया कि मुझे हैदराबाद जाना है। हैदराबाद जाने के लिए देन यू विल स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, व्हाट मोड ऑफ कन्वेंस यू वुड लाइक टू हैव, क्या प्रिपरेशन चाहिए, बैग चाहिए, सूटकेस चाहिए, मनी चाहिए, किसको मिलना है, फोन चाहिए, बैटरी चाहिए, चार्जर चाहिए, एवरीथिंग। फिर आपकी चीजें शुरू होंगी, क्योंकि आपके पास एंड गोल है। अगर एंड गोल नहीं हो तो आप वो सारी प्रिपरेशंस उस कन्विक्शन के साथ नहीं करोगे जिस कन्विक्शन के साथ वो चाहिए। तो अब उसके बाद बिजनेस में जब हमने अपना गोल डिसाइड किया, स्ट्रेटजी बना ली, फिर हम प्रमोट करते हैं, प्रमोशन शुरू होती है, कस्टमर ढूंढते हैं, क्योंकि पैसा कस्टमर देगा, सर्विस भी हम उन्हीं को देंगे। तो हम क्या, बहुत ज्यादा लोगों को मार्केटिंग करते हैं अपनी, बहुत ज्यादा लोगों को, इंटेंशनली आई एम पुटिंग दिस वर्ड, बहुत ज्यादा लोगों को मार्केटिंग करते हैं। उसमें से कुछ लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं वो आपके अपने हैं, बाकी सब दुनिया है। द होल वर्ल्ड इज filled with your business prospects, but the people who have shown interest in your product or in your services, they are your leads, they are called business leads. पूरी दुनिया भीड़ में से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, वो आपके बिजनेस लीड्स बने। बिजनेस लीड्स को फिर आप बात करते हो उनके साथ, आप रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो, उनको कुछ भेजते हो, कोटेशन भेजते हो, बिल भेजते हो, फ्रीबीज भेजते हो, ऑफर भेजते हो, कूपन भेजते हो। फिर वो लोग आपके साथ कन्वर्सेशन शुरू होता है, फिर जब एक ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर वो आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जब वो परचेज करके आपकी सर्विसेज ले लेते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आपके साथ लगाए रखें, वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास ना जाए, सस्टेन करके रखें। सो दिस रिमेन्स द थ्योरेटिकल प्रोसेस ऑफ योर बिजनेस। दिस इज बिजनेस फिनोमिना। अभी बिजनेस फिनोमिना में सेल्स फनल क्या है? Actually, sales funnel is a step-by-step process that allows you to bring your potential customer. अब किसी को अगर potential customer की बात नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हैं। Potential customer होता क्या है? जहां आपको लगा कि ये आदमी मेरी चीजें खरीद सकता है, मेरा प्रोडक्ट ले सकता है, मेरी सर्विसेज ले सकता है, तो आपने क्या किया, उन सब लोगों में मार्केट किया और उसको एक स्टेप क्लोजर लाना है। वन स्टेप क्लोजर मीन्स अभी तक क्या था, वो वन वे कम्युनिकेशन में यू वर एडवर्टाइजिंग योर सर्विसेज टू देम, बट नाउ दोज हु हैव शोन इंटरेस्ट मींस नाउ वन स्टेप अहेड योर बिजनेस इज गोइंग, मींस फ्यू पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट। जब कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो एक स्टेप आगे बढ़ गया, नाउ यू हैव सम पीपल हु हैव शोन देयर इंटरेस्ट, तो एक स्टेप नजदीक आए आप। ये सेल्स फनल हुआ। फनल का मतलब एक ऐसा यूटेंसिल और वन थिंग विच हैज अ वाइड माउथ एंड वेरी नैरोड टेल। आगे से जब हम ऑयल पावर करते हैं कहीं, तो आपने देखा होगा वो ऊपर से बड़ा मुंह होता है और नीचे से उसकी टेल पतली होती है। द सेम थिंग इज कॉल्ड फनल। एंड बिजनेस में भी वही होता है कि आप ऊपर से बहुत सारे लोगों में मार्केटिंग करोगे और नीचे से वो थोड़े से लोग
आपके कस्टमर बन के निकलेंगे। तो उनको एक एक स्टेप नजदीक लाना होता है आपकी। अब ये स्टेप्स क्या होते हैं, व्हाट आर दीज स्टेप्स एंड हाउ यू मेक द पीपल टू कम क्लोजर वन बाय वन टू यू, ये सब चीजें उस फिनोमेना का पार्ट है जिसे हम सेल्स फनल कहते हैं। टू मेक अ बाइंग डिसीजन थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केटिंग एक्शंस, अब होता क्या है कि आप मार्केटिंग के एक्शंस लेते जाते हो, उन मार्केटिंग एक्शन से लोग नजदीक आते जाते हैं, और ये सारा प्रोसेस सेल्स फनल कहलाता है। दैट इज अ सिंपल थिंग। सो यू डू समथिंग फॉर योर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, फॉर योर पोटेंशियल क्लाइंटेल, and those people are coming together nearer to you and they make buying decisions to buy your services or product, and this whole phenomena is called sales funnel. कैसे काम करता है समझेंगे। किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को फिर से पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। अब ये एक्चुअली कैसे काम करता है, व्हाट इज बीनीथ दिस, मींस इसके नीचे क्या छुपा हुआ है। तो सबसे बड़ा पैरामीटर है, यस किसी की चैट आई, वॉइस इज ब्रेकिंग, जस्ट किसका चैट है, अलका मैम नहीं लक्ष्मी मैम का। चलिए मैं अपना, तो मेरे यहाँ भी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मेरा। सर मेरे यहाँ भी वॉइस ब्रेक। ओके मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मैम, तो शायद फिर आपको मुझे बताना कि अभी मेरी आवाज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ सर। चलिए तो मैं रिपीट करता रहूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे। तो जब भी हम सेल्स फनल की बात करेंगे तो हमें कन्वर्जन रेट एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम आज समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस इज एंड व्हाट अमाउंट ऑफ दिस कन्वर्जन रेट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज। एक्चुअली द कन्वर्जन रेट इज, अगर आपने 1000 लोगों में अपना एडवर्टीजमेंट रन किया, एक एड कैंपेन रन की, एंड यू टारगेटेड 1000 पीपल अमंग द होल वर्ल्ड, वहां 1000 लोगों को आपने टारगेट किया। उन 1000 लोगों को फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट यू हैव चेस्ड, and out of those 1000 people, 40 people have converted, have made buying decision and took your services or your product. Then this was, according to this conversion rate formula, your conversion rate is 4%. 1000 लोगों में से 40 लोगों ने आपकी सर्विसेज ली, तो उसका परसेंटेज निकलता है कैसे, द टोटल नंबर ऑफ कन्वर्टेड पीपल अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पीपल टू whom you have published your advertisement or you have chased, multiplied by 100. ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लीज आप इस फॉर्मूले को अपने डायरी में रखना शुरू कर दो, बिकॉज हर महीने के जब आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की तरह, एक समझदार बिजनेसमैन की तरह हर महीने आपको ये अपना कन्वर्जन रेट आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करने के साथ साथ इसको इनहेंस करना है। हर महीने आपको इसमें इनहेंसमेंट जोड़ना है, एंड दिस इनहेंसमेंट इज नॉट एन इजी टास्क, ये सिंपल नहीं है। एडी से चोटी का जोर लग जाता है। यस यस लक्ष्मी मैम, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट, आई मीन एक्सप्लेन इट वंस अगेन। कन्वर्जन रेट मींस आपने जितने लोगों को चेज किया अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के लिए, उसमें से जितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और उसमें से जो कन्वर्ट हो गए फाइनल कन्वर्टेड पीपल। मान लिया लक्ष्मी मैम वैदिक मैथ्स की क्लासेस रन करती हैं बेंगलुरु में, एंड सी हैज कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ फ्यू पीपल, बट उन लोगों से उनका काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, पूरे बेंगलुरु में एक एड कैंपेन रन की फ्रॉम डिफरेंट वेज,
टीवी पर, मोबाइल पर, ऑनलाइन मीडिया में पैम्पलेट दिए, होर्डिंग्स लगवाए, सब तरीके उन्होंने अपनाने के बाद उन्होंने 1000 लोगों को टारगेट किया। 1000 में से 40 लोगों ने, जिस वीक में उन्होंने कैंपेन रन की, 40 लोगों ने उनकी सर्विसेज ले ली, कोर्स परचेज कर लिया। 40 लोगों ने कोर्स परचेज किया, 1000 लोगों पर आपने टाइम, पैसा खर्च किया, एफर्ट्स लगाए, तो वो आपका कन्वर्जन रेट आया आउट ऑफ 1040 मींस 4%। तो आपका जो रेट है कन्वर्जन वो 4% है। ये जो कन्वर्जन रेट है यही आपका आरओआई है। कितना पैसा, टाइम, मनी, एफर्ट्स आप लगा रहे हो मार्केटिंग पे, एंड हाउ मच यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। So you are investing your money, you are investing your time, you are investing your efforts, but what you are getting, so that is this 40 out of 1000, and जितने customers आए, जितनों को आपने चेज किया टेंटेटिवली, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर्स निकालना आपके लिए मुश्किल है, तो टेंटेटिवली आपने किया, उसमें से जो कन्वर्जन आया उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, इससे आपका परसेंटेज निकल गया। ये कन्वर्जन रेट बड़ा सिंपल है। अब ये कन्वर्जन रेट कैसे डिसाइड होता है, कन्वर्जन रेट कैसे डिसाइड होता है और आपका कितना होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आप कोई आर्बिट्रेरी नंबर नहीं ले सकते कि मुझे तो 10% चाहिए, 5% चाहिए, 20% चाहिए। सो यू कैन नॉट टेक लाइक दिस। सो दिस इज रियली अ गुड प्लानिंग कि आपको किस वे में जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10% मेरा कन्वर्जन रेट आ जाएगा। नो, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। लोग आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, आप सही जगह मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों से तरीके से बात कर रहे हो, आपकी सर्विसेज क्वालिटी सर्विसेज हैं, कॉम्पिटिटर से अच्छा दे रहे हो, तो आपकी परसेंटेज ऊपर जाएगी। अगर आपके ये फैक्टर्स कहीं पुअर हैं तो कन्वर्जन रेट सीधे सीधे हैम्पर होगी। तो अब हम आगे से लेके चलते हैं कि कन्वर्जन रेट हमारी अभी कितनी है, आगे कितनी बढ़ानी है, हमें इसे कैसे डिसाइड करना है। तो ये हम डिसाइड करने से पहले ये देख लें कि जो कन्वर्जन रेट है एक्चुअली हमारे पास अभी कन्वर्जन रेट से पहले 4 चीजें मैं आपसे पूछने चाहूंगा। इन 4 सवालों के जवाब प्लीज आप दें तो आपको आपकी कन्वर्जन रेट डिसाइड करने में थोड़ा सा सहूलियत होगी। पहली है, आपका बिजनेस क्या है। सो आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन टू पुट इन द चैट बॉक्स व्हाट एग्जैक्टली यू डू। सो एंड प्लीज आप अपना कॉपी पेन लेके बैठें, तो आपको ये जो प्रोग्रामिंग है आपके काम आने वाली है। डॉक्टर ब्रिज ने कहा हेल्थ केयर, चलिए बहुत बढ़िया, ये पहली एक्सरसाइज है आपकी आज की। बाकी सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अंशुका जी होम फर्निशिंग, अलका जी क्रिस्टल हीलर, यस, एंड सक्षम है जीएसएम डिवाइसेस, यस, एंड करण जी हैं ऑकल्ट, लक्ष्मी मैम वैदिक मैथ्स एंड अवेकस ऑनलाइन, डॉक्टर मिली आयुर्वेदा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू डू मार्केटिंग, आप उसको कैसे अभी पब्लिसाइज कर रहे हो, व्हाट आर योर प्रैक्टिसेस, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो। प्लीज पुट ऑन द पेपर, put on the paper first and then please in the chat, पहले पेपर में लिखें then you put it in the chat box। आप अभी कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, what ways you are opting to market your businesses।
पम्पलेट्स, बैनर्स, अनाउंसमेंट, ग्रेट। आप इसे नोट करके रखें डॉक्टर ब्रिज, ये एक्सरसाइज आपके काम आने वाली है पूरे 15 दिन। हाँ, लक्ष्मी मैम व्हाट्सएप एंड फेसबुक दोनों को यूज कर रहे हैं। देखना पड़ेगा एक्चुअली टाइम ट्रेड टेबल वगैरह। अलका मैम नॉट येट डन ऑनलाइन मार्केटिंग, ओनली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। कोई भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड हो सकते हैं मैम। पर्पज है कन्वर्जन ज्यादा करना। ऑनलाइन एक मॉडल हो सकता है उसका, ऑफलाइन एक मॉडल हो सकता है उसका, दोनों तरीके। पर्पज मार्केटिंग है, तो वी आर डिस्कसिंग मार्केटिंग। करण जी पम्पलेट्स, चलिए ग्रेट। व्हाट्सएप, वर्ड ऑफ माउथ, Ansuka ji, and to the known customer, Saksham website in progress. Okay. ट्रेड एलोकेशन, ट्रेड ब्लॉक ये में है। Then the third question is, how much conversion you are getting through your current practices? आपका अभी तक का कोई टेंटेटिव सा आइडिया बताएं कि आप अगर 1000 लोगों पर या 100 लोगों पर अपना टाइम और पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना आप उससे निकाल रहे हैं? What is your investment? What is your return on it? Tentatively आपका क्या है? No idea अलका जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। No idea अंशुका जी, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। यस यस, एवरीवन प्लीज इंटरेक्ट। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरेक्ट करें। डीलर्स और कस्टमर्स, ग्रेट। सक्षम जी कितना निकाल रहे हो आप? मैक्सिमम 5%, आई थिंक। ब्रिज जी नो आइडिया, नो सक्सेस, ओके ग्रेट, ठीक है। अब जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए तो रियली आई अप्रिशिएट योर दिस एफर्ट कि आप ये चीजें सीख रहे हैं। बिजनेस के शुरू करने के टाइम पे अगर ये बातें सीख रहे हैं, एक्चुअली जो बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोग करते हैं, बट एक बिजनेस को सक्सेस करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। 7 डीलर्स करेंटली, ओके। कन्वर्जन कितना निकल रहा है, मेरा क्वेश्चन ये था सक्षम कि अभी कितना हम कन्वर्जन निकाल पा रहे हैं, और आपका फ्यूचर में गोल क्या है? कितना कन्वर्जन आपको चाहिए जब आप कहोगे कि मेरा बिजनेस सक्सेस है? ये नहीं कहोगे घाटे में चल रहा है। कैसे पता चलेगा? जब आपका कन्वर्जन इतना हो कि आपके एक्सपेंसेस मीट हो और आपका ब्रेड एंड बटर निकलना शुरू हो, ठीक है, तब आप उसे कहोगे कि मेरा बिजनेस ठीक है। तो आपका इन टर्म्स ऑफ एंड इन रेफरेंस ऑफ द कन्वर्जन रेट, व्हाट इज योर गोल इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट? कितना होना चाहिए? किसी का आइडेंटिफाइड है तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। ब्रिजिट 20 to 30 कस्टमर्स डेली, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, आप अच्छे रास्ते पे हैं सर। तो ये 4 क्वेश्चन हमें यहाँ, 5वां, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? करंटली डीलर टारगेट इज अप्रॉक्स 50, ओके ग्रेट। तो ये 5 चीजें हमें चाहिए। अब इन 5 में से जितनों के उत्तर आपके पास नहीं है, आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस, you might not having answers of all those 5. In case you do not have answers, then please just explore to have the answers. बिजनेस में सक्सेस होने के लिए इन चीजों के उत्तर आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, हैंडी होने चाहिए, so that आप कैसे एनालाइज करें कि आप प्रोग्रेस के पाथ पर हैं। तो चलो इसको और थोड़ा डीप समझते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आया। डिफरेंशिएट दिस मींस अभी तक कन्वर्जन रेट क्या है आपका और आपका गोल क्या है। लाइक अभी आपको पता हो कि मैं 2% पे हूं और आप उसे 5% पे ले जाना चाहते हैं, तो उसका डिफरेंस है कि मुझे 3% और बढ़ाना है। बस ये सिर्फ एक आउटलाइन मैंने बताया आपको, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ एक आउटलाइन बता रहा हूं। बहुत हल्के से ही समझना है, बहुत सीरियसली नहीं समझना। प्लीज बी कैजुअल टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर अ बिजनेस दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। बिजनेस में जाने के लिए चीजें चाहिए, तो आपको बस आज के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए
पहला टेक अवे आज का कि मेरा कन्वर्जन रेट क्या होगा, क्या है। हो सकता है अभी कुछ भी नहीं हो, आपका बिजनेस भी हवा में हो सकता है और ये चीजें तो बहुत हवा में हो सकती हैं। सो डोंट वरी, आपको बिल्कुल इंफीरियरिटी लाने की वो भी नहीं करनी, क्योंकि ये ज्यादातर इंडिया में तो मोर देन 80% बिजनेसेस के पास नहीं है, बट बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट और आपको ये चीजें अगर शुरू में मिल जाए तो आपके बिजनेस में इन्हेंसमेंट हो सकता है, आपका बिजनेस एक प्रोफेशनल वे में आगे जा सकता है। तो मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया क्योंकि ये आपका बेस है जब आप सेल्स फनल पढ़ने जा रहे हो। तो ऐसा कोर्सेज में ये चीजें लोग जनरली नहीं पढ़ाते। अगर हम इसकी बेंचमार्किंग की बात करें कि कितना होना चाहिए, बिकॉज यू माइट बी थिंकिंग कि सर क्या होना चाहिए रेट ऑफ दिस कन्वर्जन, जनरली क्या होता है, तो देर इज नो एनी स्पेसिफिक आइडिया फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रोडक्ट के लिए ये 2% होगा। लाइक अभी मैं चैट्स में देख रहा था कि डॉक्टर ब्रिज लिख रहे थे 20 से 30 लोग आ रहे हैं मेरे पास रोज, इतना फुटफॉल उनके क्लिनिक पे है, बट वो कितनों में मार्केटिंग हो रही है ये कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है ये निकालना कि मेरे प्रोडक्ट का कितना कन्वर्जन रेट है। बट हमें कहीं ना कहीं कुछ लेके चलना पड़ेगा बेस। एब्सोल्युटली मार्केट टू मार्केट वेरी करता है कि एक ही वैदिक मैथ्स के कोर्सेज में जैसे लक्ष्मी मैम कर रहे हैं, उनके लिए कन्वर्जन रेट वो कई साल से है तो ज्यादा होगा। दोज हु आर न्यू कमर इन दिस फील्ड उनका कन्वर्जन रेट ऑब्वियसली कम हो सकता है, पर एक नई कन्विक्शन के साथ कोई न्यू कमर आया है तो उसका कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा। लाइक एक मिठाई की दुकान आपके यहाँ नई खुली है तो उनका कन्वर्जन रेट ऑब्वियसली ज्यादा होता है कि नए लोगों के पास वो लोग ज्यादा पहुंचते हैं। तो दिस वे, बट 2017 में so there was 1.7% for e-commerce businesses, it was 1.7%। तो अब उसके अलावा रिटेल बिजनेसेस जितने हैं उनका 1.9% कन्वर्जन रेट ऑन एवरेज रहता है। रिटेल बिजनेस 1.9, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जाने के बाद आप ये सर्च कर सकते हो कि आप जिस बिजनेस में हो उसका कन्वर्जन रेट क्या है। ट्रेवल बिजनेस में इट वाज 2.42 एंड फूड सप्लाई बिजनेस में लाइक स्विगी एंड दिस इट वाज 21.23%। थ्रू ऑनलाइन इट वाज 1.81%। मल्टी चैनल इट वाज 1.20। इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है दैट इज 2 to 5%। आपकी जो पब्लिसिटी होगी, आप जो मार्केटिंग करेंगे, जितने लोगों को आप चेज करोगे, उसमें से आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले जो कस्टमर बनेंगे दे विल बी 2 to 5% ओनली। आउट ऑफ 100 पीपल only 2 to 5% people will purchase your product. So that is the root fact. The second takeaway for today is कि आप 2 से 5% के दायरे में खेलने वाले हो। अगर आप 4-5% पे हो तो आप समझना यू आर ए गुड मार्केटर, एंड अगर आप 2% के आसपास पर हैं तो आप एवरेज हैं 2 to 3, एंड बिलो 2 हैं तो आप बहुत कम कर रहे हैं और आपको बढ़ाने की जरूरत है। तो अब आपको ये वाला जो फिगर है 2 to 5%, ये ध्यान देना है। अभी इसको मेजर कैसे करते हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड रेट है कि ये आप देखेंगे कि इन्होंने 1000 लोगों में मार्केटिंग की, एंड आउट ऑफ दिस 1000 50 people have shown interest. So MQL means marketing qualified leads. हाँ आप इसको समझना। नाही कसं मऊ पाहिजे एकदम पायाला गादी नाही तुला गादीच्या म्हणजे अलका मैम आपके पीछे आवाज आ रही है। अलका मैम, यस, प्लीज आप अपने माइक को ऑफ रखेंगे।
तो अभी क्या करेंगे फिर हम यहाँ 1000 लोगों पर किसी ने एक मार्केटिंग कैंपेन रन की, जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जांपल, और उनको 50 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। लाइक आपने कोई मार्केटिंग की, व्हाट्सएप पर की, फेसबुक पर की, तो फेसबुक दिखाता है कि कितने लोगों में ये जाने वाला है, व्हाट्सएप पे आपको पता है कि कितने लोगों में आप मार्केटिंग कर रहे हो, एसएमएस पे पता है आप कितने लोगों में मार्केटिंग कर रहे हो, टेलीग्राम पर पता है कितने लोगों को मार्केटिंग कर रहे हो, जितने लोगों को आपने मैसेज भेजा आपके पास वो नंबर्स हैं। अगर 1000 लोगों को आपने कोई ऐड भेजा, उसमें से 50 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, यानी 50 लीड्स आपके पास आए, बिजनेस लीड्स, 50 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, यानी वापस जो फीडबैक आया, क्वेरीज आई, वो 50 आई, मींस 5%। तो जितने लोगों को अगर आप मार्केटिंग करते हो उसमें से 5% लोग भी रिप्लाई कर देते हैं, तो आप समझना ठीक जा रहे हो। आज मैंने 92 लोगों के लिए एक कैंपेन रन की थी, सिर्फ 92, एंड आई गॉट 5 लीड्स आउट ऑफ दोस। मैंने उनमें से 5 लोगों की लीड मुझे आ गई थी, तो इट वाज ए सक्सेसफुल। अगर 92 में से 5 लीड व्हाट्सएप पर मेरे को आई हैं, तो यू कैन सी कि मेरे पास उसका 90 में से 5 सीधे 5% के आसपास आ गया, एंड दैट वाज अ गुड कैंपेन। तो आपको क्या करना है, जितने लोगों पर आपके पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं जो आप खर्च कर दोगे मार्केटिंग पे, ना इतना टाइम है ना एनर्जी है। तो जब आप टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च कर रहे होंगे, तो हर कैंपेन को ये देखना है कि मुझे कम से कम 5% रिटर्न आना चाहिए। 5% लीड मेरे पास आई, अब देखना इस 5% लीड में से 1000 में से 50 आया। अब जो इंक्वायरीज आई हैं, इंक्वायरीज पर आपकी मार्केटिंग टीम कम्युनिकेशन करेगी, या आप खुद ही मार्केटिंग टीम है तो आप उनको फोन करोगे, आप उनके साथ कन्वर्सेशन करोगे। तो जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो इन लीड्स में से 30% कन्वर्ट हुई, MQL to SAL, सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स, ये मार्केटिंग की लैंग्वेज है। यानी जब आपने उन 5% लोगों के साथ बात की, 50 लोगों के साथ, तो उसमें से 30% ही लोग ऐसे थे एक्चुअली जो कन्विंस हुए आपसे, आपकी बात से, और उन्हें लगा कि प्रोडक्ट हमारे काम का है। तो 30% लोग हुए, यानी 60% लोग यहाँ कन्वर्ट हुए उसमें से, तो 30 लोग निकले, 50 में से 30 रह गए। अब ये 30 लोग, ये था मार्केटिंग का प्रोसेस। अब मार्केटिंग के बाद सेल्स प्रोसेस आता है। जब उनसे खरीदने की बात की, तो उसमें से भी 55% ने आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए एग्री हुए। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा उनको, थैंक यू साहब, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, योर प्रोडक्ट इज सो गुड, रियली वी लाइक्ड इट, बट राइट नाउ वी हैव नो टाइम टू ज्वाइन योर कोर्सेज, ऐसे कह के निकल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी एवरीवन विल बाय योर प्रोडक्ट एट दिस टाइम। तो उसमें से भी लोगों ने, 55% लोगों ने कहा कि ओके वी विल थिंक टू परचेज इट। जैसे ही उन्होंने कहा वी विल थिंक टू परचेज दिस, यू हैव एस्केलेटेड दिस टू द सेल्स प्रोसेस। अब एक एक स्टेप हम नजदीक आ रहे हैं, देखना। पहले मार्केटिंग थी, फिर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी से फिर प्रोसेस हुआ, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड बने, फिर एक स्टेप और नजदीक आए, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड टू सेल्स एक्सेप्टेड लीड्स बनी, और सेल्स एक्सेप्टेड लीड के साथ सेल्स टीम ने बात की कि आपको, उसने कहा हमको डिस्काउंट चाहिए, तो ये डिस्काउंट है, ये ऑफर है, ऐसे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो वो जब कमर्शियल बात शुरू हुई, तो उसमें से सेल्स ने क्वालिफाई किया ओनली कितना, 55% को उसने क्वालिफाई किया, तो 18, और उसमें से भी जब SQL to बिन निकला, वो निकला 6 लोग। 1000 लोगों में से 6 लोग निकले हैं फाइनली, आप समझना। तो ऐसे ये आपका सेल्स का और मार्केटिंग का प्रोसेस रहता है। अगर 1000 में से 6 लोग निकले, तो आप समझना कि कितनी मशक्कत आपको मार्केटिंग में करनी है। अगर यही काम हम मैनुअल करें, तो कितना सारा एफर्ट लगने वाला है। एंड इफ यू आर वन मैन आर्मी wherein you are going to deliver, or you deliver your services yourself, and you do marketing yourself, you takes care for the sales yourself, you takes care for your customer queries yourself, then how easy this process is going to be for you, आप अंदाजा लगा सकते हो।
तो एक आदमी को अगर ये सारा काम करना पड़े तो इट इज नॉट इजी। और जब आप बिजनेस लगाते हो, व्हेन यू स्टार्ट्स योर बिजनेस इनिशियली, देन यू रिमेन्स ओनली वन मैन आर्मी। और एक आदमी इतने सारे काम करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, और फिर हम कहते हैं कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। एक्चुअली हमने बहुत अच्छी प्लानिंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया होता। तो सेल्स फनल अब हमें यहाँ क्या हेल्प कर सकती है? इस पूरे प्रोसेस में सेल्स फनल से हमें क्या फायदा हो सकता है? एक्चुअली सेल्स फनल इज 4 स्टेजेज बिजनेस मार्केटिंग फिनोमेना। इसमें 4 स्टेज होते हैं। वन इज अवेयरनेस, वेयर इन यू पब्लिसाइज योर कम्युनिकेशन। आप ऐड डालते हो, लोगों को अवेयर करते हो। उसके बाद लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, वो डिजायर दिखाते हैं आपको कि हम ये करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट लेंगे। फिर वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये 4 स्टेप का आइडा फॉर्मूला होता है, ये AIDA, स्टेजेस ऑफ सेल्स फनल होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस। One, awareness. The second is interest. Third is desire. Fourth is action. And this is called AIDA model, AIDA. तो हम इस AIDA मॉडल को अभी सीखेंगे, और इसको कहीं आप देखेंगे इसको 5 स्टेज में भी लोग डिस्क्राइब करते हैं, कहीं 6 स्टेज में डिस्क्राइब करते हैं। तो डोंट वरी, द बेसिक मॉडल इज AIDA, AIDA। तो हम इस AIDA को एक एक करके सीखेंगे। And the basic rule of marketing is that your audience need to see your message and your advertisement at least 7 times before they take action or buy from you. जब आप मार्केटिंग करते हो तो एक आदमी को 7 बार कम से कम आप एडवर्टीजमेंट शो करोगे, तब उसके दिमाग में आपकी बिजनेस आती है, आपका प्रोडक्ट आता है, आपकी सर्विसेज आती हैं। तो आपको 7 बार एक आदमी के सामने से, निगाह से वो एक ऐड निकलवाना है। का मतलब है आपको कंसिस्टेंट एडवर्टीजमेंट करना है। तो आपका सेल्स फनल इसमें आपकी हेल्प करेगा। और सेल्स फनल कैसे इस ऐड को 7 बार लोगों तक ले जाएगा, वो एक स्ट्रेटजी है, वो हम अगले 4-5 क्लासेस में वही करने वाले हैं। तो यहाँ पहले स्टेज में हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, दूसरे स्टेज में इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, तीसरे में उनके साथ कम्युनिकेशन, और चौथे में उनको बाइंग डिसीजन या उनको परसुएड करते हैं बाइंग के लिए। आज हम स्टेज 1 डिस्कस कर रहे हैं। स्टेज 1 में हमें क्या करना है? अवेयरनेस बोलते हैं इसको। अवेयरनेस में यहां हम लोगों को अवेयरनेस पोस्ट देते हैं। अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन मार्केटिंग की, तो हम फ्री में लोगों को पोस्ट डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, लिंक्डइन पर पोस्ट डालते हैं, व्हाट्सएप पर पोस्ट डालते हैं, टेलीग्राम पर पोस्ट डालते हैं। What they exactly are doing, they are making people aware that what is the pain of the people and what are the requirements of the people. They see, they go through, they read these posts, and then उनके दिमाग में वो बात आती है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो ये सर्विसेज देता है। आप कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली पोस्ट डालते हैं, वो आपको हेल्प करता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके टॉपिक के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं। ब्लॉग पोस्टिंग इज द ऑप्शन ऑफ दिस। इससे भी लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, यानी अवेयरनेस फैलाने के काम आता है। वीडियोस जितने वायरल होते हैं उसके पीछे एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि वीडियो वायरल करने के पीछे, वहां पीछे सबसे लास्ट में एक आउटरो लिखा होता है, उससे वो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। न्यूज जब आप फैलाते हैं, आउटस्टैंडिंग न्यूज होती है, वायरल न्यूज होती है, उसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है कि आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में जिससे आप अपने ब्रांड अवेयरनेस फैला सकते हैं। ये सबसे पहला मॉडल है, सबसे पहला स्टेज है। इससे आपके बिजनेस का फाउंडेशन बनता है। तो अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज में ये पूछने वाला हूं कि आप अपने ऑडियंस को या अपने पोटेंशियल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग सो फार। अभी तक आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए? प्लीज पुट ऑन द पेपर in the form of exercise 2, put heading exercise 2,
and just write the answers, what exactly you are doing to attract your potential audience, to make them aware. क्या कर रहे हैं आप अभी तक? डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट डाल रहे हैं, सक्षम ने लिखा, ग्रेट सक्षम। प्लीज नोट कर लेना, पापा को दिखाना है आपको कि आज ये एक्सरसाइजेस थी, तो हमारे ये डिफरेंसेस निकले हैं, यहां हमें सेल्स फनल से हमें आगे बढ़ना है। यस, अंशुका जी ने लिखा, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड फेसबुक पोस्ट, ग्रेट, वंडरफुल। नेक्स्ट, अलका मैत्रे जी ने लिखा, अट्रैक्टिव पैम्पलेट ऑफलाइन, गुड गुड। बाकी लिखें, यस प्लीज, यस। बाकी सबसे भी मैं चाहूंगा कि आप इंटरेक्ट करें प्लीज। बाकी सब प्लीज लिखें, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो लिखें। डॉक्टर मिली ने लिखा, व्हाट्सएप, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, ग्रेट। करण जी ने लिखा, बैनर, नाइस। बाकी सब प्लीज। एंड डब्ल्यूए पोस्ट, यस। व्हाट्सएप पोस्ट लक्ष्मी मैम कर रही हैं, नाइस। चलिए, एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ योर सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग इट। क्या आपने अभी तक किसी कस्टमर को, आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट योर कॉम्पिटिटर, सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स जो आपसे आगे हैं, आप समझते हो, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग टू अट्रैक्ट द पीपल। कौन अच्छी डुगडुगी बजा रहा है, आप या आपके सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स? आपके लीडिंग कॉम्पिटिटर्स कौन है? ऐसे कोई 2 लीडिंग कॉम्पिटिटर्स को सर्च करो और प्लीज देखें व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग टू अट्रैक्ट पीपल। कोई 2 पोटेंशियल 2 कॉम्पिटिटर जो आपके ऐसा लगता हो, जो एग्जैक्टली आपके सेम डोमेन में प्ले कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। उनके नाम भी लिख लो अपनी डायरी पे, आपको फॉलो करना है उनको। ठीक है ब्रिज जी, फेसबुक इंस्टा पे कर रहे हैं आप। 2 कॉम्पिटिटर्स कोई आपके ध्यान में नाम आते हो तो प्लीज आप भले या नाम ना लिखें, इन केस यू थिंक दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल राइटिंग देयर नेम्स। अगर याद है तो लिख सकते हो, द थिंग्स आर नॉट गोइंग आउट समवेयर। नो लीडिंग कॉम्पिटिटर, सक्षम, न्यू फीचर प्रोडक्ट, ग्रेट। ओके, बाकी सब चलिए, आपकी एक्सरसाइज है सेकंड क्वेश्चन में, एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई आइडेंटिफाई एनी 2 कॉम्पिटिटर्स यू थिंक दे आर डूइंग बेस्ट, दे आर डूइंग बेटर देन यू। ऐसे 2 कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखो एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल क्लाइंटेल। वो क्या कर रहे हैं, प्लीज वो नोट करना है आपको, और ये एक्सरसाइज कल पोस्ट करनी है। कॉम्पिटिटर का नाम नहीं आप रिवील करना चाहते, प्लीज हाइड इट, बट व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, पुट दैट प्रैक्टिस हियर, सो दैट आपके ग्रुप में हम 9 लोग हैं, 9 लोग में से हम 7 लोग अगर पोस्ट करेंगे तो 14 ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे सामने आ जाएंगी जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिसेस 14 आने वाली हैं, आप उनमें से एक दूसरे की उस प्रैक्टिस को आप फॉलो कर सकते हो कि आप भी उसे करें। एंड देन हाउ यू हैव टू मेक अ चेंज इन इट। आपको उसमें एक चेंज लाना पड़ेगा, तो कैसे लाओगे? सिंपल सी बात है, आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए उसमें क्या चेंज यू थिंक, आप क्या सोचते हो? अभी क्या होगा वो बात अलग है, व्हाट डू यू थिंक कि क्या चेंज होना चाहिए। ऐसे करके ये सेकंड एक्सरसाइज आज हमें करनी है। उसके बाद हम कल सेल्स फनल पर चलेंगे, और मैं उसका थोड़ा सा आपको आउटलाइन दिखा देता हूं कि हम सेल्स फनल से करने क्या वाले हैं। सेल्स फनल से ये ऐसे
सारे प्लेटफॉर्म से हम लोगों में कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट रन करेंगे। रन करने के बाद उन्हें वेबसाइट पर लाएंगे या लैंडिंग पेज पर लाएंगे। लाने के बाद उनके साथ ऑटो कम्युनिकेशन शुरू होगा। ये सारा काम जो मैनुअल है, इस मैनुअल में सेल्स फनल क्या करेगी, कुछ ऑटोमेशंस ऐड करेगी। और वो ऑटोमेशन क्या करेंगे, बिना आपके मैनुअल एफर्ट्स के, बिना आपके यानी वर्बल एफर्ट्स के, द सिस्टम, online media and this marketing automation will help you to reduce the phases, reduce the steps, and to spread awareness in more and more people, and to make them your customers convert through conversions, so that this sales funnel can help you. ये sales funnel आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपकी ब्रांड अवेयरनेस फैलाकर उनमें से ज्यादा कन्वर्जन आपके लिए ला सकती है। ऐसे प्रोसेस का जो एक्चुअली फिजिकली काम करना हम कल से शुरू करेंगे। आज ये 2 एक्सरसाइजेस प्लीज आप कर दें। कल हमारी क्लास नहीं होगी, तो द नेक्स्ट क्लास वुड हैपन ऑन मंडे इवनिंग। हम 7 बजे मिलेंगे। तब तक आप सेल्स फनल के बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको ऑनलाइन जाके अपने कॉम्पिटिटर सर्च करने, उन कॉम्पिटिटर्स कि क्या ब्रांड अवेयरनेस वो कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है। आपका कन्वर्जन रेट अभी कितना है, और ऑनलाइन सर्च करो कि आपके वाले डोमेन में, आपके बिजनेस डोमेन में कितना कन्वर्जन रेट आइडियली होना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ऐसा आप सर्च करें ऑनलाइन और प्लीज उसे ग्रुप में पोस्ट करें, सो दैट यहाँ एक दूसरे का रेफरेंस रहे। और फिर हम इंडिविजुअली उसको बात करते हुए प्रैक्टिकली इस सेशन को मंडे को आगे बढ़ाएंगे। उस दिन हम प्रैक्टिकली कैसे सेल्स फनल बनता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चीजें जरूरत होंगी, वो सब हम करने वाले हैं। तो आई थिंक आज का ये मॉडल आपको समझ में आया, और नहीं आया तो मुझे आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज? Great, Lakshmi ma'am, so nice. So I tried my best so that you can learn this advanced thing in a layman way. आप प्लीज एक्सरसाइजेज जरूर करना, बिकॉज ये बेस जब आपका क्लियर होगा ना, तो आपको बहुत अच्छा होगा कि कन्वर्जन रेट मेरा अभी क्या है, आगे क्या होगा। Excuse me, sir, I have one question. Yes, please. Sir, how can we trace के सामने competitors या जो भी है, what are they doing? Because I have not noticed anything, or maybe by giving extra discounts they are attracting the customers. सिंपल है, देखिए मैं डॉक्टर मिली का हेल्थ बिजनेस है गोवा में। हाँ जी। डॉक्टर ब्रिज का है इधर यहाँ पंजाब में। जहाँ उनका क्लिनिक है पंजाब में, उनके आसपास उनके शहर में वैसे ही फिजिशियन, अगर आप फिजिशियन हो या आप जिस तरीके की भी सर्विस कर रहे हो, ऐसी कुछ और क्लिनिक भी होंगी। अब वो 2 क्लिनिक हैं, कुछ ऐसी होंगी जो आपके बाद शुरू हुई हैं, कुछ ऐसी होंगी वो बहुत पहले से कर रही हैं। जो बहुत पहले से कर रही हैं उसका एक फैक्टर है कि उनकी एक गुडविल है, एक बहुत अच्छी रेपो, मार्केट रेपो उन्होंने बना रखी है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो न्यू राइजिंग है या आपके साथ, आपके थोड़े बहुत आगे पीछे शुरू हुए, बट वो आपसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्या तरीका अपनाया उन्होंने जिससे वो बिजनेस आगे कर पा रहे हैं। जैसे हम बात करें तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था, तो हमसे बहुत सारे ट्रेनर्स अभी पीछे हैं, ट्रेनिंग कंपनी, और कुछ ट्रेनर्स हमसे आगे हैं। तो जो पीछे हैं उनको हमें नहीं सोचना, हम सोचते हैं वो जो हमसे आगे हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। तो ये जो सेल्स फनल वाला कोर्स हम आप यहाँ सीख रहे हैं, आप देखेंगे कि हमसे जो आगे वाले ट्रेनर हैं, हम सिद्धार्थ राजशेखर की बात करें, हम दत्ता तुले की बात करें, हम मनोज की बात करें, और हम उसकी विवेक बिंद्रा की बात करें, तो ये न्यू राइजिंग नए जमाने के ट्रेनर हैं। आप इनको देखोगे तो इन सब ने सेल्स फनल ऑपरेट कर रही हुई है। ये सब सेल्स फनल पर, आप सिद्धार्थ राजशेखर को देखोगे वो फ्रीडम मॉडल पर काम करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है, एंड ही इज अर्निंग इन करोड़ों में वो कमा रहे हैं, और उनके पास ज्यादा लोग नहीं है। सिर्फ सेल्स फनल उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई है, बहुत परफेक्टली ऑटोमेशन किया हुआ है। आप देखोगे सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड पे हो रही है।
अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको फॉलो का मतलब है कि उनसे अच्छी चीजें हमें देखने कि वो कर क्या रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं, वो सेल्स फनल लगा रहे हैं, क्या क्या मैग्नेट्स लगा रहे हैं, वो कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं उनकी, तो हम उनको देखना होता है। तो आप भी अपने कोई 2-3 जो नियरेस्ट कस्टमर हो, नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हो, उनकी वो एक्टिविटीज को देखो। पैम्पलेट चला रहे हैं, टीवी पे ऐड चला रहे हैं, या वो होर्डिंग्स लगा रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया पर जा रहे हैं, कुछ उनकी हरकतें आपको वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आइडल नहीं बैठ सकते। हमें जिनके साथ कंपटीशन करना है तो हमें ये पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, हम कहाँ लैकिंग है, तो हम चीजें जोड़ें, अपनी कैप में वो फेदर्स जोड़ने हैं हमें। तो जैसे मैंने अपना आइडिया बताया, जैसे डॉक्टर ब्रिज का बताया, वैसे ही आप देख सकते हैं कि आपके डोमेन में कौन प्ले कर रहा है। कॉम्पिटिटर भी नहीं कहे तो आपके डोमेन में कौन प्ले कर रहा है अच्छी तरह। आप ऐसी 3-4 वेबसाइट सर्च करो ऑनलाइन, तो वो क्या करते हैं उसके लिए, तो आपको पता चल जाएगा। Fine, Yes. sir. I will try. Okay, welcome, ma'am. Is there any question, please? आपका किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बट ये एक्सरसाइज प्लीज जरूर करना। आप ऑनलाइन थोड़ा सा डीप डाइव करें, और जहां आपको दिक्कत लगे प्लीज गिव मी अ कॉल एंड आई वुड बी अवेलेबल बिटवीन 10 to 12 एक्सेप्ट ऑन संडे। कल भी मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं जो नहीं समझ में आए। रादर दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दिस वुड बी पोस्टेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये क्लास खत्म होने के बाद ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो मैं 10 से 12 आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मंडे इवनिंग फिर हम मिलने जा रहे हैं, उस दिन हम प्रैक्टिकली सेल्स फनल बनाने की तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाएंगे। So can we leave now? Thank you everyone. Thank you, sir. Okay, welcome ji. Okay, bye bye. Thank you. Good night everyone.